हाँ, अष्टक वर्ग. We will do the calculation part. Page number 113 of that book, Dots of Destiny का विनय आदित्य. ओके, सी हम लोग ने पहले we did भिन्नाष्टक वर्ग, उसके बाद सर्वाष्टक वर्ग किया. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप वो भिन्नाष्टक वर्ग को लेके वी हैव टू डू त्रिकोण शोधन. त्रिकोण मीन्स ट्राइन. त्रिकोण मीन्स ट्राइन. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ त्रिकोण? त्रिकोण का स्पेशलिटी ये है कि ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, ऑल द डायरेक्शंस आर same, correct? So here all the elements जो भी है त्रिकोण का will be grouped as one: fire, earth, air, water. Okay, and the example chart that we will be taking is a male person, 28th September 1998 at 8:36 a.m. born at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Okay, you have to put it in your Jyotish app and you take out the भिन्नाष्टक वर्ग from there. Okay, भिन्नाष्टक वर्ग. ठीक है. Now in exams, when I had given exams, nothing was given to us for the exams. We had to memorize everything. But for you, Arvind was with me studying, okay? And I know how we did this. A lot of people got just pass mark mila tha. But you people will be lucky. You will be getting ये पेज का जो रूल्स है ना, वो रूल्स आपको मिलेगा. ओके, बट ये देने के बावजूद पीपल मेक मिस्टेक्स. सो फर्स्ट इज त्रिकोण शोधन. इन त्रिकोण शोधन वी विल कैलकुलेट त्रिकोण शोधन फॉर ईच एंड एवरी planet. Okay, for each and every planet, and the basis is going to be the Prasar Ashtak Varg, or we call भिन्नाष्टक वर्ग. ठीक है. Now it's very simple. If you go to the page number 114, there are 4 rules given. 4 रूल दिया है. एक, when the number of bindus is not equal in the trinal group, subtract the smallest figure from all the 3 and retain the remainders. इसका मतलब यह है, अभी सूर्य का हम लोग त्रिकोण शोधन करते हैं. ठीक है, सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग निकालो. हाँ, हर भिन्नाष्टक वर्ग, हर प्लैनेट का. इसके लिए प्लैनेट करना पड़ेगा, सब प्लैनेट. सूर्य का if you take fiery signs, एरीज में 3 है, लियो में 4 है और सैजिटेरियस में 4 है. कौन सा बहुत कम है? 3. So reduce 3 from 1, from 4. So what will be there? In Aries it will be 0, Leo it will be 1, and Sagittarius it will be 1. You are getting me what I'm saying? I will repeat. See, in Trikon Shodhan, the trinal signs are to be taken which are of the same element. Now we are doing for Sun. Okay, so the base chart, the base table is going to be the भिन्नाष्टक वर्ग for
sun, because we are going to do for sun. Okay. Now, which are the fiery signs? Aries, Leo, Sagittarius. So you have to reduce this. How? The first rule कहा गया है कि जो भी ये फायरी साइंस में जो कम है, ये तीनों को लेके कंपेयर करो तो कम है, जो कम वाला फिगर है वो बड़ा वाला फिगर से माइनस करो. Reduce the lowest figure in this particular three signs, that is fiery signs. Reduce the lowest number of figure from the other figures. So, in this Surya ka Vinnashtak Varg, in Aries you have 3 points. In Sagittarius, in Leo we have 4 points. In Sagittarius there are 4 points. So, it is 3, 4, 4. What is the lowest number? 3. So 3 minus 3 in Leo, in Aries will be 0. And in Sagittarius 4 minus 3 is 1. In Sagittarius 4 minus 3 is 1. So the end result will be 0, 1, 1. Clear? You can write down if you want. Clear? Any doubt? Okay. Then you go to the earthy sign. Okay. In earthy sign, I'll read the rules now. Second rule. A corollary to the first principle is that no reduction is required to be done if the figure in one of the sign amongst the group is 0. That means, if suppose in this fiery sign which we did now 0, 1, 1 हमको जो मिला, यहां पर अगर कोई भी भिन्नाष्टक वर्ग में अगर 0 होगा, सपोज एग्जाम्पल आई एम गिविंग, एरीज में 0 है और सजिटेरियस में लियो में 4 है और सजिटेरियस में 4 है, तो leave it as it is, no reduction to be done, so it be 0, 4, 4. Clear? Because 0 से तुम reduce नहीं कर सकता है. Mathematically if you see, from 4 you cannot reduce 0, no? Correct? So the second rule is clear? बराबर? Now the third rule. A second corollary to the first principle is that if all the figures are equal in the group, make them all equal to 0. Simple है. Same. अगर सब 3, 3 होता तो सबको 0 कर दो. 3 minus 3 0, 3 minus 3 0, 3 minus 3 0. Simple है. ठीक है. If there are 2 zeros in a group, eliminate the third figure also. That means rule 4. अगर एरीज में 0 है, लियो में 0 है और सैजिटेरियस में कुछ 3 है समझो, तो 3 है उसको 0 कर दो. करेक्ट? इफ देयर आर 2 zeros in a group, eliminate the third figure also. That means eliminate means उसको निकाल दो, उसको 0 कर दो. यही 4 है. समझ गया? लास्ट का लॉजिक ये है कि अगर सब दोनों भी 0 है तो 0 माइनस 0 तो होगा ही नहीं. ओके, 3 माइनस 0 भी होगा ही नहीं, तो 2 0 है तो तीनों को, तीसरा को भी 0 कर दो. तो सिंगल 0 में ऐसा नहीं किया. हाँ, सिंगल 0 में ऐसा नहीं किया, लेकिन 2 zeros में ऐसा 2 zeros में ऐसा करना है. उसमें क्या लिखा है? फोर्थ इसमें, सम अथॉरिटीज डू नॉट एक्सेप्ट दिस लास्ट रूल. अभी तुमने बताया ना, in any case its occurrence would be very rare. देखेंगे. okay, now let's go one by one. okay, fiery sign हो गया, 0, 1, 1 आया. okay, देखो इसका application is very very important. You will get a lot of surprises in this application. अभी now earthy sign. earthy sign are Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus में you have 5. okay, then in Virgo you have 4,
एंड कैप्रिकॉन 3. सो विच इज द लोवेस्ट वन? 3. तो 3 को माइनस करो. टॉरस में 5 और वर्गो में टॉरस में 5. टॉरस में कितना है देखो, टॉरस में 5. ओके, और बाद में 4 बाद में 5 और 3 देखो तो 2 1 see in Taurus is 5. Okay, in Virgo is 4 and in Capricorn is 3. So 3 is the lowest one. So Capricorn में 0 होगा, करेक्ट. फिर बाद में टॉरस में 5 - 3 2 होगा. ओके, करेक्ट. और बाद में वर्गो में 4 - 3 1 होगा. क्लियर है? क्लियर है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर और नॉट? नाउ यू गो टू एरी साइन. एयर, which are the airy signs? Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so in Gemini there is 4 and in Libra there is 4 and in Aquarius there is 5. So it will be 0 0 1 0 0 1 0 0 1. Clear? In watery sign में you have 5, that is Cancer, Scorpio 5 3 and 4. So 3 is the minimum. So then it will be 2 0 1. ये हो गया त्रिकोण शोधन. क्लियर है? सन का त्रिकोण शोधन. सेम वे let us do for moon. Okay, let us do a planet where there is 0 है क्या देखेंगे हम लोग. ओके, लेट मी जस्ट चेक. मरकुरी में भी नहीं है, जुपिटर में नहीं है, देखेंगे ना. वीनस में नहीं है, सैटर्न में, स्कॉर्पियो में है. ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट. ओके, ये चार्ट इन्होंने इवेंट दिखाया, बताया नहीं, बट बाय नाडी आई फाउंड आउट दैट ही हैज सम एडिक्शन व्हिच ही क्लेम्स. अभी मून है तो मून का भी नाश्ता देखना है. हाँ, अभी हम लोग सैटर्न का देख रहे हैं क्योंकि सैटर्न में 0 है, स्कॉर्पियो में 0 है. तो इसमें वी विल गो बाय दैट. बट नाडी से मुझे पता चला कि ये अभी कुछ एडिक्शन में है, सुसाइडल टेंडेंसीज है उसमें, है कि नहीं? सुसाइडल टेंडेंसीज है. शी इज एक्सेप्टिंग ऑल दिस. मदर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम. शी इज अ पेडियाट्रिशियन. शी हैज लेफ्ट द प्रैक्टिस ऑफ पेडियाट्रिशियन एंड समथिंग एल्स शी इज डूइंग. मदर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल. ओके, I asked her whether he's got into smoking. ये सब ये एज में is into lot of smoking, drinking, इसमें सब में है लड़का. Okay. Now we will find out through this अष्टक वर्ग also. Okay, we'll do that. Now Saturn करेंगे हम लोग. मून के सैटर्न. Saturn, क्योंकि Saturn में 0 है ना. Okay. Now you take fiery sign. Fiery sign में in Saturn का there is 2 in Aries, 2 4 4. So it will be 0 2 2 because वो जो 2 है 4 में से रिड्यूस करना पड़ेगा ना. तो एरीज में 0 आएगा, लियो में 2 आएगा क्योंकि 4 - 2, और बाद में सैजिटेरियस में 2 आएगा 4 - 2. करेक्ट. अभी नाउ यू कम टू अर्दी साइन. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. टॉरस में 2 है, 3 है, सॉरी, टॉरस में 3 है और वर्गो में 2 है और कैप्रिकॉन में 3 है. तो कौन सा 2 कम है ना? 2. सो 1 0 1. करेक्ट. वर्गो में 2 ही है,
दो है वर्गों में, इट विल बी 1 0 1। नहीं, देखो 3 है ना इधर, एक मिनट, कैप्रिकॉन में 3 है, टॉरस में 3 है, मर वर्गों में 2 है, तो 2 रिड्यूस करेगा ना, 2 रिड्यूस करेगा ना सब में से, 3 में से, तो 1 0 1, 1 इन टॉरस, 0 इन वर्गो, 1 इन कैप्रिकॉन, करेक्ट। नाउ यू कम टू एरी साइन। एरी साइन में जेमिनी में 5 है, लिब्रा में 4 है, और इधर एक्वेरियस में 4 है, तो इट विल बी 1 0 0। करेक्ट, इट विल बी 1 0 0। क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो वाला, ओके, ऑल नहीं, 2 0 रहेगा तो ऑल 0, 1 रहेगा तो छोड़ देने का, ऐसे, 4 0 2 As it is. करेक्ट। नाउ यू विल सी विनाशक वर्ग में इधर 6 है, कैंसर में, स्कॉर्पियो में 0 है, और यहां पर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, 6 0 2, ऐसा ही रख दो, बराबर है, सिंपल है, त्रिकोण शोधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 0 आएगा तो उसको क्या करने का, तीसरों को भी 0 कर देने का, इतना ही रूल है, बराबर ना? क्लियर? त्रिकोण शोधन, 1 0 then keep as it is. यस, 2 0 then Make all 0. सर अगर 0 को छोटा पकड़ते हैं तो अगर 2 0 आया तो तीसरे को ऐसा ही नहीं रखना चाहिए। नहीं, तीसरों को भी 0 कर देने का, ओके। 1 0 आया तो ऐसे ही रखने का, इफ इज 1 0 कीप एवरीथिंग एज सेम, ठीक है, हो गया। नाउ आर यू क्लियर? नहीं, नो रिडक्शन, 6 0 2। देखो स्कॉर्पियो में बिफोर रिडक्शन त्रिकोण शोधन, पहला त्रिकोण शोधन करना है, उसके बाद एकाधिपत्य शोधन। हाँ, त्रिकोण शोधन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सैटर्न हम लोग क्यों लिया, क्योंकि सैटर्न में, स्कॉर्पियो में बिफोर द रिडक्शन 0 है वहां पर, करेक्ट, 0 है ना। तो इफ यू टेक द ग्रुप ऑफ ऑल 40 साइन का ग्रुप लेंगे तो कैंसर में 6 है, स्कॉर्पियो में 0 है, और पाइसेस में 2 है। तो रूल कहा गया है कि अगर एक में 0 होगा तो ऐसे ही रख देने का, कुछ करने का नहीं। क्लियर है? तो इसके लिए बिफोर रिडक्शन कैंसर में 6 था, विनाशक में 6 को 6 ही रखो, स्कॉर्पियो में 0 था, 0 उधर 0 ही रहने दो, और पाइसेस में वहां पर 2 था, 2 को 2 ही रख दो, कुछ चेंज मत करो। क्लियर? क्लियर? एवरीबडी क्लियर? देयर नो डाउट? ओके। सर आप मून का नहीं करेंगे, सैटर्न इसलिए करेंगे, सैटर्न में 0 है, यू हैव टू डू फॉर ऑल। सब प्लैनेट का विनाशक वर्ग होगा, सब प्लैनेट का त्रिकोण शोधन होगा, सब प्लैनेट का एकाधिपत्य शोधन भी होगा, सबका करना है, ठीक है। अभी एकाधिपत्य शोधन करेंगे, ठीक है, बाकी का आपको करना है, बाकी प्लैनेट का सिंपल है, कोई नॉट अ प्रॉब्लम, ओके, डू इट, सेम चार्ट यू डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस, यही चार्ट लेके हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी का जो भी रूल्स है, ओके। शोध्य पिंडो जिसको बोलते हैं हम लोग। अभी एकाधिपत्य शोधन, ये थोड़ा ट्रिकी है, एकाधिपत्य शोधन, इसमें थोड़ा, हाँ, एक आधिपत्य, सी द डिफरेंस बिटवीन त्रिकोण शोधन एंड एकाधिपत्य शोधन ये है कि त्रिकोण में एलिमेंट्स आर सेम, त्रिकोण में एलिमेंट्स आर सेम एंड द डायरेक्शंस आर आल्सो सेम। क्लियर है कि नहीं? बट एकाधिपत्य इफ यू स्प्लिट, एक आधिपत्य मीन्स वन ओनरशिप, सो त्रिकोण शोधन में 3 साइंस विल कम इनटू प्ले, करेक्ट।
एकाधिपत्य में only 2 signs will come into play. Now the question will be, सन और मून को एक ही हाउस है ना, वहां 2 साइन नहीं है ना, तो उसका रूल में देयर इज अ डिफरेंस. ओके, नाउ एकाधिपत्य शोधन का रूल्स ये है, सन का करेंगे. ओके, वेल फर्स्ट विल गो थ्रू द रूल. ये थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए. दिस रिडक्शन इज टू बी अप्लाइड आफ्टर त्रिकोण शोधन. क्लियर? पहले भिन्नाष्टक वर्ग करेंगे, फिर त्रिकोण शोधन करेंगे. त्रिकोण शोधन का जो चार्ट है, टेबल है, दैट विल बी द बेसिस फॉर डूइंग एकाधिपत्य शोधन. करेक्ट? सो द बेस फॉर त्रिकोण शोधन इज भिन्नाष्टक वर्ग, एंड फॉर एकाधिपत्य शोधन द बेस चार्ट इज त्रिकोण शोधन. ओके, क्लियर? क्लैरिटी? Yes, sir. Now this reduction is to be applied after त्रिकोण शोधन. Correct? Cancer and Leo do not undergo this reduction. अभी मैंने बताया ना, बस कैंसर और लियो को आधिपत्य एक ही है, 2 साइन नहीं है. करेक्ट ना? ओनरशिप एक ही साइन को ओनरशिप है ना. सूर्य को कली लियो है, चंद्र को कर्क है, वेरएस वीनस को मार्स को 2 है, एरीस और स्कॉर्पियो है, वीनस को टॉरस और लिब्रा है, और बाद में बुध को जेमिनी एंड वर्गो है. ऐसे देयर आर 2 साइंस. ओके, सो दिस एकाधिपत्य शोधन डू नॉट अंडरगो दिस रिडक्शन फॉर सन एंड मून. ओके, दैट इज कैंसर एंड लियो. All other signs have to share their lord with another sign, and therefore they are subjected to this reduction, which is applied according to the following 3 principles in sequence. That means ये जो भी कैंसर और लियो को छोड़ के ये जो भी हम लोग रूल पढ़ेंगे, वो रूल will be applicable for all signs except कैंसर and लियो. So far clear सबको? Anybody clear? Now first it says no reduction need to be done, but condition क्या है? If there are planets, अभी now पहले का त्रिकोण शोधन में we were only concentrating on the numbers. किसमें कम था, किसमें 0 था, किसमें 2 0 था. बट यहां पर थोड़ा टेक्निक अलग है. यहां पर टेक्निक है, it's a combination of number as well as planets. Okay, no reduction is to be done if there are planets in both the signs owned by a planet. अभी यहां पर उसका मतलब क्या है आपको देखना है कि अगर एरीस और स्कॉर्पियो लेते हैं, अगर दोनों भी साइन में प्लैनेट है, हाँ, एनी प्लैनेट, यहां पर राहु केतु नहीं लेते आप. ओके, राहु केतु नहीं लेते. इफ देयर आर प्लैनेट्स इन बोथ द साइंस, देन नो रिडक्शन इज टू बी डन. क्लियर? द सेकंड रूल, इफ देयर इज 0 in one of the 2 signs, whether occupied or not. The second rule, the base rule is क्या है? जैसे इनकम टैक्स में बोलते हैं ना, इफ एनीबडी इज इन फाइनेंस, समझेगा कि प्रोविजन एंड सब प्रोविजन जो भी बोलते हैं ना, सेक्शन सब सेक्शन, क्लॉज सब क्लॉज. ओके, तो पहले वाला प्रोविजन है, रूल है, नो रिडक्शन टू बी डन. बट उसमें सब क्लॉज क्या है? उसमें इफ देयर आर प्लैनेट्स इन बोथ द साइंस. अभी यहां पर इफ वी सी एरीस में और स्कॉर्पियो में, एरीस में सैटर्न है और स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट नहीं है. हाँ, चार्ट देखेंगे तो टॉरस में कोई प्लैनेट नहीं है, लिब्रा में कोई प्लैनेट नहीं है, जेमिनी में कोई प्लैनेट नहीं है, मगर वर्गो में 3 प्लैनेट है. और कैंसर और लियो तो छोड़ देंगे हम लोग, बराबर है. सजिटेरियस में, धनु में मून है, पाइसेस में कोई प्लैनेट नहीं है.
और कैप्रिकॉन में प्लैनेट नहीं है और एक्वेरियस में जुपिटर है। ओके, सो ये कंडीशन, पहला वाला कंडीशन तो इसमें अप्लाई होएगा ही नहीं, करेक्ट है। अभी नो सेकंड कंडीशन, इफ देयर इज जीरो इन वन ऑफ द टू साइंस, that zero is nothing but the Trikonshodhan chart. If there is zero in one of the two signs, whether occupied or not, that means Aries में zero है। अभी सन लेंगे ना, सन को लेंगे, ठीक है, हाँ सन को लेंगे, सन में लेंगे तो एरीज में जीरो है, स्कॉर्पियो में जीरो है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, कुछ नहीं करने का, छोड़ देने का, सही, 0 0 0 ही रहेगा। क्लियर? द फर्स्ट रूल ना अप्लाई होता है ना, क्लियर और नॉट? देन द नेक्स्ट रूल, हाँ, वन ऑफ द टू साइंस, बोथ नहीं बोला है, वन ऑफ द टू साइंस, करेक्ट। नहीं, यहां पर सैटर्न ऑक्यूपाई किया है, हाँ हाँ, नहीं, पहला वाला रूल होगा। इफ देयर आर प्लैनेट्स इन सेकंड रूल में, सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा, बिकॉज इफ देयर आर प्लैनेट्स इन बोथ द साइंस, इधर बोथ द साइंस में नहीं है तो सेकंड रूल अप्लाई होगा, करेक्ट? क्लियर? सैटर्न है, it says if there is zero in one of the two signs, whether occupied or not. But if considering the first rule, if in both the signs planets are there, but if one sign has zero, then what? That's what I'm, see, we'll go to another rule. If one sign is occupied, 1 minute, we'll finish this. If one sign is occupied and the other is not, that means Aries में Saturn है, हाँ, सेकंड प्रोविजन, एक मिनट, नहीं आता हूं। इफ वन साइन इज ऑक्यूपाइड एंड द अदर इज नॉट, तो उसमें हो गया, एप्लीकेबल हो गया वो, उसमें सब प्रोविजन है। इफ द नंबर इन द ऑक्यूपाइड वन इज ग्रेटर, हाँ, देन दैट ऑफ द अनऑक्यूपाइड वन, एलिमिनेट द अदर। तो इसमें क्या है, द नंबर इन द ऑक्यूपाइड वन, अभी इसमें दोनों में जीरो है ना, ग्रेटर का तो सवाल ही नहीं उठता, दोनों में जीरो है ना, त्रिकोणशोधन में एरीज में दोनों में जीरो है, हाँ वही मैं बता रहा हूं, आगे देखो। इफ द नंबर इन द ऑक्यूपाइड इज लेसर देन दैट इन द अनऑक्यूपाइड वन, देन मेक द लेटर इक्वल टू द फॉर्मर, तो 1 1 हो जाएगा, सेम कर देगा। We'll do that one by one. हाँ, नहीं, सन का ही इसमें, सन का त्रिकोण शोधन का इसमें देखना पड़ेगा, मार्स का नहीं देखने का। हम लोग पहले क्लबिंग जो करते हैं ना, एरियस और स्कॉर्पियो करते हैं। ओके, अभी थर्ड, इफ द नंबर्स आर इक्वल, एलिमिनेट द नंबर इन द अनऑक्यूपाइड वन, दैट मीन्स एक और एक रहेगा, नंबर इक्वल हो गया, और एलिमिनेट द नंबर इन द अनऑक्युपाइड वन, समझ गया? इफ द नंबर्स आर इक्वल, त्रिकोण शोधन में इक्वल है, समझो यहां पर अभी धनु में और पाइसेस में एक एक है, देखो, हाँ बराबर की नहीं, धनु में 1 है और सन का त्रिकोण शोधन में धनु में 1 है, पाइसेस में भी 1 है, तो इफ द नंबर्स आर इक्वल, तो इक्वल हो गया। एलिमिनेट द नंबर इन द वन, एलिमिनेट द नंबर इन द अनऑक्युपाइड वन, देन अनऑक्युपाइड कौन सा आ गया, पाइसेस हुआ, पाइसेस में कोई नहीं है तो उसको 0 करो, तो 1 0, हाँ बहुत बोलेगा तो यही मैं बोला ना, ये थोड़ा समझने को थोड़ा डिफिकल्ट होगा, 2-3 एग्जाम्पल करेगा ना आपको इजी हो जाएगा, खाली इतना, हाँ साजी में बना जाएगा, पाइसेस में 0 हो जाएगा,
Okay. Now the third, if both the signs are unoccupied, अभी यहां पर कंडीशन टॉरस में आएगा अनऑक्युपाइड, और लिब्रा, उसमें दोनों में प्लैनेट नहीं है ना, करेक्ट, दोनों में प्लैनेट नहीं है. द थर्ड प्रोविजन सेज if both the signs are unoccupied. So in our chart in D1, Taurus does not have any planet and Libra does not have any planet. So ये वाला सीधा वो थर्ड रूल में ही बैठ जाएगा, सीधा थर्ड रूल में बैठ जाएगा ना, है कि नहीं. बट थर्ड रूल में कौन सा है? इफ द नंबर्स आर इक्वल इन बोथ, ओके, बट दे आर नॉट इक्वल. ओके. The second, if the numbers are not equal, convert the larger into the smaller. That means क्या होगा? If the numbers are not equal, convert the larger into the smaller. हाँ, तो यहां पर क्या होगा? तो एकाधिपत्य शोधन में वहां पर टॉरस में, नाउ कंडीशन देखो, इधर एक कंडीशन है, अप्लाई 2b and 3b only when 1b is not applicable. Apply, caution देखो उधर लिखा है, इसी के लिए वहां पर 2-0 होगा. Apply 2b, बराबर है, ध्यान से देखो, it says apply 2b or 3b only when 1b is not applicable. तो 1b is what? हाँ, तो करेक्ट, सो इट विल बी 2-0. इसी के लिए आपको ये रूल दिया जाएगा एग्जाम में, बट यू शुड वाइसली अप्लाई इट. सेम रखने का ना, सेम रखने का. सर ये नहीं समझी, अब टॉरस का नंबर, टॉरस का 2 है, टॉरस का 2 है, और दैट इज त्रिकोण शोधन, और लिब्रा में 0 है. ओके, बराबर ना, दोनों में प्लैनेट नहीं है. बट द उधर लिखा है इफ द बोथ साइंस आर अनऑक्युपाइड. ये रूल तो सीधा अप्लाई हो जाएगा ना, मगर उसमें एक कॉशन दिया है, अप्लाई 2b और 3b ओनली व्हेन 1b इज नॉट एप्लीकेबल. 1b क्या है? if there is 0 in one of the two signs, whether occupied or not. पहला में देखो, no reduction is to be done, वहां पर प्लैनेट का कुछ संबंध नहीं है. एकाधिपत्य शोधन में ही फर्स्ट रूल सेज नो रिडक्शन नीड टू बी डन. उसमें सेकंड प्रोविजो दिया है, if there is 0 in one of the two signs, whether occupied or not, that means no reduction to be done. No, तो 2-0 ही रहेगा ना. क्लियर है कि नहीं? You are not still clear? Not clear. Tell me where you are not clear. See, we know that we have to check the त्रिकोण शोधन chart. We know that we are going to do त्रिकोण शोधन, वही चार्ट लेगा. Okay, so we are taking त्रिकोण शोधन for sun. Now the third provision is to be very carefully applied. उसमें क्या है? It says if both the signs are unoccupied, so we are taking Taurus and Libra, दोनों में there is no planet, so third rule will be applicable. Okay, but when you apply the third rule, there is a caution that you have to exercise. That caution says apply the 2b, that is if the numbers are not equal, convert the larger one into the smaller. Okay, or 3b, 2b is, sorry, if the number in the occupied is lesser, if the number in the occupied is lesser than in the unoccupied one, but it is not lesser, no, एक में 2 है, 0 है. Okay, इधर occupied नहीं है, there is no planet occupied, correct? So this is not applicable. And 3b is what? If both the signs are unoccupied. That's correct, unoccupied. But if the numbers are not equal, it is not equal, correct? Convert the larger into smaller.
तो 0 0 करने का नहीं है, 0 0, बट इट सेज व्हेन apply 2b or 3b only when 1b is not applicable. तो 1b में क्या बोलता है? If there is 0 in one of the two signs, whether occupied or not, no reduction is to be done. Correct? The 1b will be applicable. Clear? So 2 0 will be there. Correct? Now let us do, you will have to do now for, we'll take moon, we'll take. Okay? Moon we'll take. Now you will tell me now. अच्छा, we are not done for sun. सन के लिए क्या है? सन के लिए क्या है? कुछ नहीं करने का ना, जो है वही है, ने बोला है ना, एग्जाम में देगा ना त्रिकोण शोधन का, जो सन और मून का जो है वही फिगर उधर डाल दो, उधर करने का ही नहीं ना कुछ अपने को, सीधा दो उधर डाल दो, उधर दो 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 एक है तो एक उधर डाल दो, समझ गया? क्लियर? करेक्ट, करेक्ट, यू गॉट इट? ओके, नाउ विल टेक फॉर मून. नहीं करना है कुछ भी, सेम ही होगा, मैं बोला ना, नहीं करना है ना. त्रिकोण शोधन का जो फिगर है वही फिगर एकाधिपत्य में डाल दो, वही तो मैं बोल रहा हूं. ठीक है, अभी नाउ विल डू सन का खाली हम लोग ये लिया, बाकी का भी साइंस लेंगे ना हम लोग. करेक्ट, बाकी का साइंस लिया नहीं हम लोग ने. नहीं नहीं, सन का खाली, हाँ अभी सन का लेट्स टेक एरीज एंड स्कॉर्पियो. सन ही ले रहे हैं, एरीज और स्कॉर्पियो. एरीज में 0 0 है. ओके, सी विच रूल इज एप्लीकेबल. हाँ, वो टेबल से नो रिडक्शन इज टू बी डन. अभी एक में ऑक्यूपाइड है और दूसरे में ऑक्यूपेशन नहीं है, तो यू हैव टू टेक, ओके, इफ वन साइन इज ऑक्यूपाइड द अदर इज नॉट, तो सेकंड रूल आएगा. करेक्ट? इफ द नंबर इन द ऑक्यूपाइड वन इज ग्रेटर, तो इधर तो संबंध ही नहीं, 0 0 है. ठीक है. सेकंड, इफ द नंबर इन द ऑक्यूपाइड इज लेसर, वो भी कुछ आएगा नहीं. If the number are equal, eliminate in the unoccupied, तो 0 0 आ जाएगा. क्लियर है कि नहीं? बराबर. नाउ यू गो टू द नेक्स्ट एकाधिपत्य, दैट इज जेमिनी एंड वर्गो. यहां पर भी एक में ऑक्युपाइड है, एक में नॉट ऑक्युपाइड है. जेमिनी में देयर इज नो प्लैनेट. Virgo में there are 3 planets: Venus, Sun, Mercury. Okay, so which will be applicable? Which rule? If one sign is occupied and the other is not, so second proviso will be applicable. Correct? Second proviso will be applicable, no? Correct? So it says that वहां पर ऐसा रहेगा तो क्या करने का? If the number in the occupied one is greater, एक में 0 है, एक में 1 है, ऑक्यूपाइड है, ग्रेटर ही है. 1 is greater than 0, right? Then if the number occupied 1 is greater than that in the occupied one, eliminate the later. Eliminate the later. If the number in the occupied is lesser, okay, now third rule पढ़ो. If both the signs are unoccupied, okay, तो both the signs are unoccupied, तो इधर वो तो occupied है इसमें. ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? एक मिनट, नहीं, 1 2 देखो, 1 2 उसमें क्या लिखा है? If there is 0 in one of the two signs, whether occupied or not, no reduction. Correct? एकाधिपत्य में हम लोग जो 2 साइन है ना, उसमें एक को इंपॉर्टेंस देंगे, दूसरे को निकाल देंगे. हाँ, but the condition is occupied or not occupied. But इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा. If the number in the occupied, अभी provision 2,
Sub proviso 2, sub proviso 1, that is 2A. 2A applicable दिखता ना यहाँ पर, because if the number in the occupied one is greater than in the unoccupied one, eliminate the later. तो 0 0 करना था ना तुम लोग, मगर उसमें एक रूल है ऊपर वाला, उसमें क्या लिखा है, कॉशन में आ जाएगा वो, कॉशन में apply 2B or 3B when 1B is not applicable, but there 1B if there is 0 in one of the two signs whether occupied or not, वो आ जाएगा ना, है, इसके लिए कुछ भी मत करो, बेसिकली दो साइन में से एक साइन को लोग निकाल देगा। हाँ हाँ एक कोई आधे पत्ते बना, करेक्ट। और मून को वैसे रख दिया, सन को ऐसे रख दिया, अभी आया मेरे को धनु में आएगा, धनु में आएगा और मीन में आएगा। ओके, दोनों भी इक्वल है, ओके, दोनों भी इक्वल है। अभी दोनों भी इक्वल है तो इसमें का रूल कौन सा अप्लाई होगा, फर्स्ट नो रिडक्शन इज टू बी डन, फर्स्ट रूल। इफ देयर आर प्लैनेट्स इन बोथ द साइंस, ये तो नहीं है इसमें, उसमें है ही नहीं कुछ, ओके। इफ देयर इज 0, वो भी नहीं है। इफ द नंबर इन द ऑक्युपाइड, if the number in the occupied is lesser, हाँ, वो भी नहीं है इसमें। 2B is not applicable. Now 2 3, if the numbers are equal, eliminate the number in the unoccupied one, ये रूल अप्लाई होएगा। if the number 2C will be applicable, 2C, if the number are equal है, eliminate the number in the unoccupied one, unoccupied is Pisces, तो वहां 1 को 0 कर दो, हाँ 1 0, करेक्ट। क्लियर है कि नहीं? हाँ, उसको 0 कर देना, दोनों 0 नहीं आएगा, नहीं नहीं, दोनों 0 आएगा जब भी दोनों त्रिकोण में 0 0 रहेगा तो नो रिडक्शन, करेक्ट। 1C नहीं, 1B, क्लियर है? तो ये बेसिस में तुम लोग मून का करो। अरे नहीं, मून का भिन्नाष्टक वर्ग તમે क्या છે, મૂન भिन्नाष्टक वर्ग લેવાનો છે, उसका त्रिकोण शोधन, उसके बाद एकाधिपत्य वो तो लिखना है, बट यू डू फॉर मून का त्रिकोण शोधन करना है ना, फिर बाद में उसका एकाधिपत्य शोधन भी करना है ना, वो मैं बोल रहा हूं। अभी ये करने के बाद वी विल लर्न लॉट ऑफ रूल्स। हाँ, रूल्स हम लोग है ना, प्रेडिक्शंस में बहुत फायदा होगा। वो बाकी है, ये आप लोग थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा ना आपको घर में जाके, यही चार्ट में आप लोग इसका बाकी का प्लैनेट को करो, त्रिकोण एकाधिपत्य। अरे बुक में है तो घर में जाके करो ना। हाँ, ठीक है। So we'll meet in the next class. What you will do is you will calculate for all भिन्नाष्टक वर्ग of all the planets. Calculate त्रिकोण शोधन for this chart of 28 September 1998. Calculate त्रिकोण शोधन, calculate एकाधिपत्य शोधन. Then we will do on that basis. We will do lot of predictions. यही चार्ट, अभी यही चार्ट में देखो, एक बात मैं बोलता हूं, कोई भी चार्ट में पहले आपको इमीडिएटली समझना है ना, नाड़ी का अप्लाई करो। नाड़ी सिंपल है, नाड़ी का अप्लाई करो। नाड़ी में आपको सीधा पकड़ में, नाड़ी है ना, नाड़ी वैद्य क्या करता है, ऐसा हटा के इमीडिएटली बता देता है ना। यही नाड़ी का भी इधर है एस्ट्रोलॉजी में। आपने क्या पकड़ा? मैं बता रहा हूं। अभी ये बंदे का क्या एज है? 28 है, बराबर है, 28 है। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड है। आई जस्ट टेक 2 मिनट्स। हाँ,
बट आई वांट टू एक्सप्लेन यू बिकॉज यू नो सी एस्ट्रोलॉजी है ना, प्रेडिक्शन करना, तो ये बेलपूरी करना चाहिए, बेलपूरी करना चाहिए। ओके, आप एक ही केपी को लेके करेगा ना, किधर भी नहीं पहुंचोगे। पराशर लेके हो ना, किधर भी नहीं पहुंचोगे। वेस्टर्न करेगा ना, किधर भी नहीं। सबको एक बेलपूरी बनाओ, तो बेलपूरी बनाने के बाद ही आपको अच्छा बेल मिलेगा। समझ गया? तो मेरा कहने का मतलब है व्हेन यू स्टार्ट तो एक मिनट मैं बताता हूं। अभी इसका एज है 28 ईयर चालू है, बराबर। 27 खत्म हो गया, 28 चालू है। ओके, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर किधर है? 5th हाउस में। कौन सा साइन है? एक्वेरियस। 24th ईयर किधर खत्म होगा? पाइसेस यार, ना क्या देख रहे हो? पाइसेस। ओके, 25th ईयर एक्वेरियस में, 26th ईयर कैप्रिकॉन में। हाँ, और क्या? अच्छा, ओके, उल्टा जाएगा ना, जुपिटर रेट्रो है ना, तो उल्टा जाएगा। तो 24th ईयर विल बी पाइसेस, बरोबर છે कि नहीं? 25th ईयर कुंभ राशि છે, 26th ईयर मकर राशि છે, 27th ईयर धनु राशि છે। धनु में कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हुआ? मून, राहु, मार्स, सैटर्न। अभी देखो मून को कनेक्शन क्या है? राहु के साथ है, शनि के साथ है, और वहां पर मंगल। ये सब, ये मून इज एडिक्शन, मून इज एडिक्शन। वो कुछ ना कुछ तो वो उसका मेंटली पूरा डाउन है। वो ये मून जब भी सैटर्न, मार्स, राहु की कनेक्ट होता है ना मैलेफिक्स के साथ, वो सुसाइडल टेंडेंसीज में जाता है। और धनु राशि में है वो। धनु राशि इज वेपन, करें क्या है? वेपन है ना। तो उसको चोट लगना, ऊपर से गिर के चोट लगना, ये सब होगा। ये सब फायरी साइंस है। तो स्मोकिंग, ये सब होगा। और मून इज मदर। ओके, मदर का भी हेल्थ, मदर का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सब मैंने बताया, शी एक्सेप्टेड दैट। सो वो बेसिस में तुम पहला पकड़ में लेने के लिए, ओके, पकड़ में लेने के लिए। और अभी देखो उसके पहले 26th ईयर में, 26th ईयर में क्या है? किधर होगा? कैप्रिकॉन में होगा ना, प्रोग्रेस गुरु। वो मैं आज सिखाएंगा आपको। टुडे आई टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नाडी टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, 26, अरे 24th ईयर पाइसेस में है, तो 25th ईयर एक्वेरियस हुआ ना, 26th ईयर कैप्रिकॉन हुआ ना, करेक्ट। वो जुपिटर एक्टिवेट किया, वीनस, सन, मेरकुरी, सब मेरकुरी है, वीनस, सन, मेरकुरी, बराबर है, बराबर। वीनस क्या है? नीच है वहां पर। सो ही वॉज इन्वॉल्व विद सम, एक गर्ल के साथ इन्वॉल्वमेंट था उसका। वो ब्रेक हुआ क्योंकि वीनस का आगे सूर्य एनिमी है। ये ब्रेक होने के बाद वापस दूसरा किसके साथ मिला वो, बराबर है कि नहीं मेरा? ये वीनस जो है 26th ईयर में, 26th ईयर में आई एम टेलिंग, 2 साल पहले he was connected with Venus। वो भी वीनस बोलेगा तो क्या है? वीनस इज समथिंग अनयूजुअल। इट इज नॉट अ, अच्छा उच्च का फीमेल रहेगा तो वीनस उच्च करेगा। ये वीनस है ना, इज सपोज टू बी डेबिलिटेटेड है, और उसका आगे सूर्य है, ओके, और चंद्र है। सो ये सब दिखाता है कि दो रिलेशनशिप इज नॉट विथ अ फीमेल, इट कुड बी ए मेल, होमो, टू बी क्लियर, होमोसेक्सुअल, बराबर है? यही है, करेक्ट है, करेक्ट है। देख वीनस नीच का है, तो देन इज रिलेशनशिप विद द गर्ल्स इज नॉट विद द गर्ल्स। उसका आगे सूर्य भी है, एक तो नीच का भी है, उसका आगे उसका शत्रु है। कंबशन ऑलवेज टेक ओनली 3 degrees 20 minutes। डोंट टेक बृहद जातक में जो दिया है। हम लोग ने फर्स्ट ईयर में, मैंने तो आपको सिखाया नहीं है। बृहद जातक में कंबशन का हर एक प्लैनेट का अलग अलग दिया है, बट वो मत लो। ओके, टेक 3 degrees 20 minutes का ही कंबशन, विद इन 3 degrees 20 minutes। कंबशन का भी बहुत मैं आपको सिखाया नहीं फर्स्ट ईयर में, बट कंबशन का, गोइंग टुवर्ड्स कंबशन,
कंबस्टेड, गोइंग आफ्टर कंबस्टन, ये सब बहुत कुछ एप्लीकेबल है। नाड़ी में बताएगा उसको। साइना में काफी